Hello students, welcome to MDC Learning. We are learning the subject financial accounting and the topic which we are starting is liquidation of company. Chalo, let's read the problem, understand the problem and then start solving the problem. This is our third problem of the same topic. Let's read the problem. LT Limited went into the liquidation with following liabilities. Secured creditors is 40,000. Security realized rupees 50,000. Now see, you had the secured creditors which was rupees 40 और जिसके अगेंस्ट में वो सिक्योर था उसका रियलाइजेशन हो गया 50,000. प्रेफरेंस क्रेडिटर्स रुपीज 1,200. Unsecured creditors 61,000. Liquidation expenses rupees 500. The liquidator is entitled to the commission of 3% on the amount realized. Now see, liquidation commission क्या बोला है? 3% of the amount realized, including what? Including security in hand of security creditors. यानी कि सिक्योर क्रेडिटर्स के ऊपर भी जो अमाउंट रियलाइज किया वो मिला के, मतलब दोनों मिला के 3% आपको इस पे कमीशन मिलेगा and 1.5% of amount distributed to various unsecured creditors. Okay, and क्या बोला है? 1.5% of the amount distributed to the unsecured creditors. The various assets including security in the hands realized to rupees 52,000. Okay. नो कमीशन इज पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट किया उस पर नो कमीशन. शो द लिक्विडेटर एक्सपेंसेस शोइंग द पेमेंट मेड बाय उदार. सी ये लास्ट टाइम के प्रॉब्लम के जैसे ही है, लेकिन वो अगेन आई हैव वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू, सो आई हैव टेकन इट. चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन डू, you what here you can write by liquidator. You can always write that liquidator commission पूरा ही रॉन्ग हो गया. by liquidators remuneration. Am I correct? By liquidator remuneration. अरे क्या हो रहा है? Yeah, we'll write by liquidator commission, by liquidation expenses. Yes, this two will always be there, so we'll write this by liquidator commission and by liquidator expense. You can write and keep. Okay, चलो हम लोग प्रॉब्लम रीड करते हैं. द कंपनी वेंट इन द सिक्योर क्रेडिटर्स रुपीज 50,000, रियलाइज रुपीज 50,000. तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. व्हाट विल राइट? टू, याद है ना हम लोग क्या लिखते हैं? टू सरप्लस. यस, टू सरप्लस. ये एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज कितना हुआ? 50,000 और लेस सिक्योर क्रेडिटर्स कितना था आपका? 40,000. सिक्योर क्रेडिटर्स कितना था आपका? 40,000. तो आपका सरप्लस कितना हो गया? 10,000. समझा बच्चों? अगर आपका कोई भी एसेट सिक्योर्ड होता है, अगर वो एसेट में ज़्यादा रियलाइज होता है तो वी राइट इट हियर एज सरप्लस, नहीं तो हम क्रेडिट पेमेंट साइड में ले जाते हैं उसको. ओके बच्चों, चलो उसके बाद प्रॉब्लम से वैसे ही जाने का. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज 1,200. Unsecured creditors is 61,000. Liquidation expenses rupees 500. चलो liquidation expenses कितना हो गया? 500. हम ये लिख लेंगे. उसके बाद क्या बोला है?
The liquidation remuneration is 3% of amount realized, including the security in the hand of security creditors, 1% of amount distributed to unsecured credit. The various asset excluding मतलब ये जो सिक्योरिटी वालों को छोड़ के इन द हैंड रियलाइज रुपीज 52,000. सो यहाँ पे आपका आएगा एसेट रियलाइज कितना हो जाएगा आपका 52,000. सो यहाँ पे आप लिखोगे टू एसेट्स. आपका एसेट्स कितना रियलाइज हुआ 52,000. नाउ सी व्हाट इज प्रॉब्लम सेइंग कि ये दोनों का 52 प्लस 50,000 विल गिव यू अ कमीशन ऑफ रुपीज 50,000. आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है प्लस 52,000 जो आपको आया है. सो टोटल आपका कितना हो रहा है, हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं. यस मेरे को 50,000 मेरा आया था सिक्योर क्रेडिटर्स का प्लस 52,000 मेरे दूसरे एसेट्स का आया है. सो टोटल मेरे पास कितने पैसे आ गए हैं 50,000 प्लस 52,000 that comes to 1,02,000. That comes to 1,02,000. Now what is my problem saying that I'll be getting the liquidator remuneration is 3% of amount realized. 3% of amount realized. So 3% of amount realized matlab 3% of 1,02,000 multiply by 3 divide by 100. What I'm going to get it? What is my commission? Into 3%. That is coming to 3060. 3060. ओके फिर हम आगे देखते हैं. चलो and after that commission is very simple. The no commission is payable for preference share और 1.5% for the remaining people. ओके चलो इसमें से मेरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है 1,200. सो आपको पता है सबसे पहले मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दूंगी. तो यहाँ पे आएगा बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है मेरा 1,000. सी बेटा ये इतना तक तो बहुत सिंपल है जो आप आराम से कर सकते हो. प्रॉब्लम आपका खाली लिक्विडेटर कमीशंस में आएगा. नाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओवर. नाउ सी मेरे पास बचा कितना है. आई हैव 62,000 रुपीज विथ मी. आउट ऑफ दैट ये दो एक्सपेंसेस तो हम लोग दे देंगे और फिर जो बचेगा उसके ऊपर हमारा लिक्विडेटर कमीशन आएगा विच इज़ इक्वल टू 1.5%. तो चलो हम देखते हैं अभी. यस मेरे पास पैसा कितना है 2,000. उसमें से मैं माइनस करूँगी 500 माई एक्सपेंसेस माइनस 1,200 माई व्हाट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माइनस 3060. मेरे पास कमीशन आ जाएगा एंड क्या. अब देखो मेरे पास बच कितना रहा है. तो 62,000 माइनस 500 माइनस 1,200 माइनस 3060. सो टोटल मेरे पास अरे क्या हो गया 62,000 माइनस 500 minus 1,200 minus 3060 that is coming to 57,240. Now this 57,240 इतना मेरे पास पैसा बचा है. दिस मनी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था दिस इज इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लस योर कमीशन. यस सो मैं क्या बोलूँगी लेट unsecured creditor be 100. Therefore, commission will come to see this is only the important but therefore the commission will be 100 का 1.5% कितना आया. I'll calculate and show 100 into 1.5%.
कितना आया 1 रुपी 50 पैसे, देयरफॉर द कमीशन इज 1 रुपी 50 पैसे। एम आई करेक्ट? सो अब ये जो है व्हेन अभी आपके पास ये दोनों ऐड करके आपके पास फिगर है, एम आई करेक्ट? सो द टोटल अमाउंट इज 101.50। अगर मेरा 101.50 है तो मुझे कमीशन मिल रहा है 1.5। सो अगर मेरा 57,240 है, सो व्हाट विल बी माय कमीशन? इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Am I correct? We are supposed to do the cross multiplication. So when I do a cross multiplication, what I'm getting? Cross multiplication is 57,240 multiply by 1.5 divide by 101.5, that is equal to, so it is 57,240, sorry, we have to clear it off. 57,240 multiply by 1.5 divide by 101.5. I am getting a commission of 845.9, that means 846. So I am getting the commission of 846. So my total commission will be, टोटल कमीशन, समझ रहा है बच्चों? ये बहुत सिंपल है, आपको इस तरह से मैथमेटिकल यूज करना है। टोटल कमीशन इज 3060 plus 846, which is equal to, yes, 3060 plus 846, which is equal to 3906. Okay, so your commission is coming to 3906. आपके पास ज़्यादा पैसा बच ही नहीं रहा है कि आप किसी और को दोगे। So now you are having 62,000, correct? Here also it will come as 62,000. जो बचा कुचा है वो आ जाएगा by unsecured creditors. कितना बचा मुझे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए? 62,000 माइनस 3906 माइनस 500 माइनस 1,200. So I am getting 56,394. I am getting 56,394. Now see students, आपको अभी कमीशन कितना बोला? 1.5% इंटू 1.5%। देखो आपको क्या किया मैंने, 56,394 इंटू 1.5%। देखो आया है आपका 84.96, 846 आपका कमीशन आया। दैट मीन्स यू हैव डन इट करेक्टली। सी यही कमीशन है ना आपका, देखो 846 ही आपका कमीशन आया ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। दैट मीन्स यू हैव डन इट करेक्टली। समझा स्टूडेंट्स? प्लीज कॉन्सेंट्रेटेड। ये इतना छोटा अगर आया तो इट फॉर 8 मार्क्स। सो 8 मार्क्स का हो जाएगा आपका 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क्स, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसका 2 मार्क्स होगा, इसका 2 मार्क्स होगा, क्योंकि दोनों में वर्किंग नोट है। लेकिन अगर 8 मार्क्स का है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, यहाँ पे 1 मार्क आपका हो जाता है, ये भी 1 मार्क हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये एटलीस्ट 4 मार्क को आपको हाथ में आ ही जाते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और ये इस तरीके से आपको ये वर्किंग नोट भी दिखाना है। हाँ, डोंट फॉरगेट टू शो द नोट, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हमेशा बताना होता है। सी वर्किंग नोट वेरी सिंपल था। Yes, you are supposed to show the working note. Chalo, thank you. Start practicing. This chapter is also very easy. You should get full out of full. Okay, chalo, bye. Take care.